Hello students, welcome back to my channel Aditya Physics Classes. Student, today in this lecture we will discuss experiment number 2. Student, we have already discussed experiment number 1 in previous lecture. Okay, so now today experiment number 2. So what is the aim of experiment number 2? So aim is to find the resistance of a given wire using a meter bridge. Now this is aim of the experiment number 2. Apparatus required here a meter bridge, a resistance wire, a resistance box, a jockey, one-way key, a galvanometer, a battery eliminator, and connecting wire, etc. Principle of this experiment: meter bridge is a device working on principle of balanced Wheatstone bridge. According to the principle P upon Q, this is equal to R upon S. Now we can explain what is Wheatstone bridge and what is meter bridge, and this principle also explain. Okay, so what is P, what is Q, R and S. ठीक है, so explain करते हैं one by one. So now इसको नोट करिए, उसको explain करते हैं फिर. Okay. तो व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? स्टूडेंट नंबर 1 तो ये हेडिंग आपको नोट नहीं करनी है, ये केवल इसको एक्सप्लेनेशन देना है. मैं केवल ये क्लियर कर रहा हूँ कि व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि जो हमारा मीटर ब्रिज है वो डिवाइस जो वर्क करती है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करती है. तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज? सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज. ये कहाँ से हमको मिला? ठीक है ना. तो इसको डिटेल में तो आप लोग अपने सिलेबस में इसको पढ़ेंगे. जब आप लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहां पे ये टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अभी क्योंकि एक्सपेरिमेंट हम लोग करा रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेलिंग में आपको दे देते. A meter bridge is also called as a slide wire bridge and is nothing but the practical application of a Wheatstone bridge. The general arrangement of a Wheatstone bridge is shown in this figure. And a Wheatstone bridge is the arrangement of 4 resistances in quadrilateral form. To determine one unknown resistance of any 4 of them, it consists of the arms AB, BC, CD and AD. It consists of known and fixed resistance P and Q, variable resistance S and unknown resistance R respectively. The arms AB and BC are known as ratio arms. A sensitive galvanometer G is connected across the terminal B and D. A battery and a key is connected across the other 2 terminals A and C. This is the general arrangement of a Wheatstone bridge. Now, let us see the application of the Wheatstone bridge. Now, adjust the variable resistance S until the deflection in the galvanometer becomes null. While there is no current through the galvanometer, the bridge is said to be balanced. That is, the voltage difference between point B and D is 0. At this condition, the current flowing through the resistance P and resistance Q is I1, and the current flowing through the unknown resistance R and through resistance S is I2. As we said earlier, the point B and D are in the same potential. That is, voltage drop from point A to point B is equal to the voltage drop from point A to point D. I1 into P is equal to I2 into R. Let it be the equation 1. For the same reason, voltage drop from point B to point C is equal to the voltage drop from point D to point C. That is, I1 into Q is equal to I2 into S. Let it be the equation 2. By dividing equation 1 and 2, we get I1 into P by I1 into Q is equal to I2 into R by I2 into S. That is, P by Q is equal to R by S. So, when the Wheatstone bridge is said to be balanced, we have
P by Q is equal to R by S. We draw a circuit diagram of the meter bridge. Okay, so मैं व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट डायग्राम क्लियर करता हूँ, सॉरी मीटर ब्रिज का, ठीक है ना, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज तो एक प्रिंसिपल है, लेकिन मीटर ब्रिज एक डिवाइस है जो वर्क करती है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे। सो ये पूरा सिस्टम जो बना होता है व्हीटस्टोन के लिए, ये एक कार्डबोर्ड पे बना होता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी उसको, कि जब प्रैक्टिकल करूंगा, कनेक्शन करूंगा, तो आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। तो सर्किट डायग्राम हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं लाइक दिस। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ये हमारा जो ये वाला गैप है, ठीक है ना, इस गैप में हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स एक तरह से काम करेगा, जैसे आपने अभी व्हीटस्टोन ब्रिज देखा था, तो वहां पे जो आर रेजिस्टेंस था, ठीक है ना, उस रेजिस्टेंस आर को हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स की जगह यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो गैप है, इस गैप में हम लोग जिस वायर का हमको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है, वो वायर को हम लोग यहाँ पे इस गैप में सेट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, ये अननोन रेजिस्टेंस, और इसका नाम मैंने दे दिया है बेटा एस। ये एस हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस बॉक्स सपोज ये रहे हमारा आर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसको मीटर ब्रिज इसलिए बोला जाता है, या इसको स्लाइडिंग वायर भी, स्लाइडिंग ब्रिज भी बोला जाता है, क्योंकि हम लोग इस पे स्लाइड कराते हैं जॉकी को, क्योंकि यहाँ पे इस गैप में 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है, 1 मीटर लंबा, ठीक है ना, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मीटर ब्रिज। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। तो यहाँ पे एक स्केल लगा होता है जिससे हम लोग रीडिंग को पढ़ सकते हैं। So this is total length of, suppose this point A, total length this is 100 सेंटीमीटर, या हम लोग बोला 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर आल्सो इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, दिस। और ये जो गैप होता है, इसमें हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर का ये एक टर्मिनल यहाँ ऐड हो गया, और इसके दूसरे टर्मिनल से हम लोग कनेक्ट करते हैं जॉकी को, ठीक है ना। और जॉकी को कनेक्ट करके हम लोग इस वायर पे टच करते हैं और देखते हैं कि हमको जीरो डिफ्लेक्शन मींस नल डिफ्लेक्शन कहाँ दिखता है, जहाँ पे हमारी ये निडल जो है ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना। सपोज ये इस पॉइंट पे नल डिफ्लेक्शन मिला, तो इसको हमने नाम दे दिया ए बी, एंड द लेंथ ऑफ ए बी सपोज L सेंटीमीटर, एंड दिस पॉइंट इज जो बचा हुआ है बी सी, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ दिस 100 माइनस L सेंटीमीटर, और ये वाला पॉइंट आपका हो गया डी, ठीक है ना। तो जो हमने व्हीटस्टोन अभी बनाया था ये, ठीक है, ये अभी व्हीटस्टोन हमने ड्रॉ किया था। तो ये ए बी, और ए बी में ये लगा हुआ रेजिस्टेंस पी, बी सी में डी में लगेगा आर, और इसमें लगेगा एस, ठीक है। तो हमको ये वाला रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये रेजिस्टेंस हमारा ये लगा हुआ एस, और ये रेजिस्टेंस आर। यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करेंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स इज द कलेक्शन ऑफ द मेनी रेजिस्टेंस, ठीक है, उसमें कई सारे रेजिस्टेंस होते हैं। तो जो भी रेजिस्टेंस हमको वर्किंग में लेना होता है, उसकी हम की ओपन करते हैं और वो हमारा काम करने लगता है, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस P है, ये इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस है AB, यानी L सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस P, और 100 माइनस L सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस Q, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है, ठीक है, दिस।
और एक दूसरे के ये पैरेलल में है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग इज यूज्ड फॉर्मूला, ठीक है। सर्किट डायग्राम आप लोग बनाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला, तो स्टूडेंट फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। जो प्रिंसिपल था वो था P अपॉन Q दिस इज इक्वल टू R अपॉन S, और हमको ये S रेजिस्टेंस यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे बात करूंगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमारा रेजिस्टेंस R है तो इसमें जो रिलेशन होता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। Here rho is specific resistance or resistivity and R is the resistance of the material of the wire जो भी होगा, L is the length of the wire, A is the cross sectional area, ठीक है। अब मैं इसी फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इस फॉर्मूले के यूज से मैं P रेजिस्टेंस को फाइंड करना चाहता हूँ। सो P दिस इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ रो L अपॉन A, ओके, एंड Q दिस इज इक्वल टू रो, अब L की जगह मैं यूज करूंगा 100 माइनस L, क्योंकि जो Q रेजिस्टेंस है वो कितनी लेंथ का है, 100 माइनस L सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस इतना है, ठीक है, अपॉन A, ओके। सो दिस इज वैल्यू ऑफ P एंड दिस इज वैल्यू ऑफ Q, ठीक है। वी नो दैट, आप ऐसे करके लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं, ठीक है। What is P? P is the resistance of the L centimeter length and Q is the resistance of the Q centimeter length. Okay. So put the value of balancing condition क्या थी? P upon Q this is equal to R upon S. तो यहाँ इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू को पुट कराइए। तो P की जगह अगर पुट कराऊंगा, so there P की जगह पुट करा रहे हैं, this is rho L upon A upon Q is 100 minus L upon A. This is equal to R upon S, right? रो से रो कैंसिल हुआ, A से A कैंसिल हुआ, हमको ये S निकालना है। तो what is S? तो S this is equal to value of S. This is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, S equal to R, और ये 100 माइनस L का मल्टीप्लाई R से होगा 100 माइनस L अपॉन दिस L, ठीक है। सो दिस इज वैल्यू ऑफ R, सॉरी S। तो ऐसे करके इस फॉर्मूले का यूज करके हम अननोन रेजिस्टेंस S को निकालेंगे। तो यूज्ड फॉर्मूला हमारा ये हो गया, S इज इक्वल टू R 100 माइनस L अपॉन L। मैंने आपको ड्राइव करके दिखा दिया कि ये कैसे आया, ठीक है। नाउ अब हम लोग सीखेंगे कि कनेक्शन हम लोगों को कैसे करने हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाता हूं और ध्यान से देखिए किस तरह से हमको कनेक्शन करने हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। The positive of the battery eliminator is connected to the left end of the meter bridge wire. The negative of the battery eliminator we have connected to the other end of the meter bridge wire through this key. Next, the known resistance, which is this resistance box, we have connected to the left gap in the meter bridge. And the unknown resistance we have connected to the right gap in the meter bridge. So the positive of the galvanometer is connected to the center of the meter bridge and the negative is connected to the jockey. तो अभी अभी आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने कनेक्शन किए, ठीक है। कनेक्शन करने के बाद में अब कैसे हमको ऑब्जर्वेशन टेबल को बनाना है। सो दिस इज ऑब्जर्वेशन टेबल, सीरियल नंबर, पहला कॉलम, सेकंड कॉलम इज रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। आरबी मींस रेजिस्टेंस बॉक्स इज आर, उसको हम लोग आर नाम दे चुके हैं, ठीक है। दिस इज बैलेंसिंग लेंथ इज ए बी, दिस इज L सेंटीमीटर। सो again is length of BC, this is 100 minus L centimeter and unknown resistance इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग निकालेंगे। तो देखते हैं कैसे हम लोग unknown resistance के लिए स्टार्टिंग करेंगे। फिर से एक बार देखिए। Now, let us see how the resistance is measured using the meter bridge. This is the fully connected circuit of a meter bridge. For the first observation, turn on the power supply, take out 7 ohms from the resistance box
and insert the key. Now, take the jockey and touch the meter bridge wire at different positions till the galvanometer shows zero deflection. As you can see, the galvanometer shows null deflection. So, let us measure the length of the wire. It is 55.3 centimeters. For example, tabulate this value under balancing length AB is equal to L centimeters. Therefore, calculate the length BC, that is 100 minus L, which is 44.6 centimeters. Unknown resistance X is calculated using the values of AB, BC and R. Similarly, repeat the same procedure to find the balancing length for 10 ohm, 12 ohm and 14 ohm. Calculate the mean resistance X, which is the resistance of the wire. Substitute. तो इस तरह से आप लोग कम से कम 4 से 5 रीडिंग ले लेंगे और उसके बाद मीन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के बाद में आर की वैल्यू R1, R2, R3, R4 जो भी रेजिस्टेंस आएंगे और फिर उसका मीन रेजिस्टेंस ले लेंगे. जो मीन होगा वही हमारा उस अननोन वायर का रेजिस्टेंस होगा. ठीक है. सो नेक्स्ट सेटिंग हमारी रहेगी प्रीकॉशंस. ठीक है. प्रीकॉशंस हमको क्या क्या यहाँ पे रखनी है इस एक्सपेरिमेंट में, उसको आप लोग नोट करिए. The connections should be neat, clean and tight. All the plugs in the resistance box should be keyed properly. The jockey should not be pressed over the bridge wire. The key should be closed only when we are taking the readings. While balancing the bridge, null point should be brought between 45 centimeters and 55 centimeters. So this is last setting result. ठीक है. The unknown resistance of the wire, result हमारा आया, जो मीन रेजिस्टेंस निकल के आया वायर का वही हमारा रिजल्ट होगा. तो मेरा इस एक्सपेरिमेंट में इतना निकल के आया, लेकिन आप इसको अभी छोड़ देंगे क्योंकि ये आपको लैब में करना और आपका मीन रेजिस्टेंस कितना आएगा वो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे. ठीक है ना. मेरा इस एक्सपेरिमेंट में इतना निकल के आया. ओके. सो टुडे वी विल क्लोज हियर. इन द नेक्स्ट डे, in the next video we will discuss about experiment number 3. Okay, so thank you.